Big hello to all class 12 students. Class, I hope you all are doing great. You all people have completed your notes up to lesson number 4. That's great. And today we'll be finishing off with lesson number 4 so that I can give you more work from Monday onwards and a new chapter as well from Monday onwards. So today's class is for class 12. The subject is economics. Lesson is for price elasticity of demand. Right? So yesterday the topic we did was price elasticity of demand. Right, children? And factors affecting price elasticity of demand. And today we'll be moving forward with the other topic, and the topic is income elasticity of demand. Many times they ask about, in the board examinations, they ask about income elasticity of demand. So let's know what is income elasticity of demand and what are its types. Right? So we will be starting with income elasticity of demand. Well, when the demand increases due to the increase in the income of a consumer, or when the demand decreases due to the decrease in the income of the consumer, this is known as income elasticity. So if we start defining it, definition is going to be the relationship between change in income and change in demand is known as income elasticity of demand. Right? So what is the definition? Income elasticity of demand measures the income elasticity of demand. Income elasticity of demand measures the degree of change in quantity demanded due to the change in the income of the consumer. Right? So what does the income elasticity of demand says? Let's understand this first. Before we have studied price elasticity of demand. So in price elasticity of demand, what we did? We read about the change in demand due to the change in price. Same way you have income elasticity of demand. Income elasticity of demand tells you or explains you about the change in demand due to change in income. Very simple. So what does the definition says? Income elasticity of demand measures the degree of change in quantity demanded due to the change in the income of the consumer. Right? More precisely, income elasticity of demand may be defined as the ratio of proportionate change in the quantity demanded upon proportionate change in the income of the consumer. So elasticity of income, Y is denoted for income is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. We are talking about income, so it's going to be income. Right? So this is the formula. Delta Q upon delta Y. Y stands for income into Y upon Q. Right? So it's very, very clear. Let's read it once again. Let's go through it once again. Income elasticity of demand measures the degree of change in quantity demanded due to the change in the income of the consumer. ठीक है, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होती है, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ती है, और अगर इनकम घटी है तो डिमांड भी घटती है. दिस इज व्हाट इसका जो मेजरमेंट है और इसका जो पढ़ना है इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. सो ये तो हो गया आपका क्या? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो लेट्स गो थ्रू द टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.
So we are going to read types. ठीक है, अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी क्या है, टाइप्स है. तो इसके टोटल कितने टाइप्स है, टोटल इसके थ्री टाइप्स. तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, 3 टाइप्स है इसके. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी. Positive income elasticity. What does positive income elasticity means? Right? अब वो कहते हैं income elasticity of demand is said to be positive when the increase in the income of the consumer increases with the decrease in income of the consumer. Again, income elasticity of demand is said to be positive when the increase in income of the consumer, the amount purchased of commodity increases. When income of consumer increases, the quantity demanded now. जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है. And with the decrease in the income of the consumer, the amount purchase of a commodity decrease. और साथ में क्या होगा, and fall in income leads to fall in demand. ठीक है, fall in demand. For most of the commodity, income elasticity of demand is positive because an increase in income leads to increase in quantity demanded. Now we are reading the types of income elasticity. So the income elasticity का पहला जो टाइप है वो है positive income elasticity. Positive income elasticity मतलब क्या है, जब इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ी और जब इनकम घटने पे डिमांड घटी. वेरी सिंपल. अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है. अगर आपकी इनकम घटती है तो आपकी डिमांड भी घट जाती है. तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो ये क्या है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इनकम बढ़ने पे डिमांड नहीं बढ़ती है और इनकम घटने पे डिमांड नहीं घटती. इसका मतलब इसका उल्टा भी होता है. पर ज़्यादातर हमारे जो गुड्स है वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रखते हैं. मतलब ज़्यादातर जो गुड्स है उनमें आपकी इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी और इनकम घटने पे क्या होगी, डिमांड घटेगी. राइट नाउ अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे. गुड्स विद पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स. अब क्या है, गुड्स विद पॉजिटिव इनकम elasticity are normal goods. नॉर्मल गुड्स के बारे में मैं आपको पहले वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट नॉर्मल गुड्स इन थ्योरी ऑफ डिमांड. आई टोल्ड यू नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स whose demand increases with the increase in income and decreases with the decrease in income. This I told you. Right now अब जो गुड्स पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रखते हैं वो सारे गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं. ध्यान से मेरी बात को सुनिए. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी वो होती है जब इनकम बढ़ने पे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती है और इनकम घटने पे कंज्यूमर की डिमांड घटती है. अब वो सारे गुड्स जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी रखते हैं वो कौन से गुड्स होंगे, नॉर्मल गुड्स होंगे. ठीक है, फॉर नॉर्मल कमोडिटीज वी कैन क्लासिफाई इनकम इलास्टिसिटी इनटू 3 कैटेगरीज. अब हम क्या करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. अभी पहला टाइप पढ़ रहे हैं, पहले टाइप के अंदर 3 कैटेगरीज में इनकम इलास्टिसिटी को बांट सकते हैं. ठीक है, पहला टाइप में पॉजिटिव में आप देख सकते हैं इनकम इलास्टिक, दूसरा होगा आपका इनकम इनलास्टिक and third is going to be
इनकम यूनिटरी इलास्टिक. So we are reading income elasticity of डिमांड एंड टाइप्स पढ़ रहे हैं. टाइप्स तीन तरह की, जिसमें पहला टाइप पढ़ रहे हैं. पहले टाइप के भी तीन टाइप्स है, राइट. इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव पहला वाला जो टाइप है वो ये कहता है इनकम के बढ़ने पे अगर डिमांड बढ़ रही है और इनकम के घटने पे अगर डिमांड घट रही है तो ये क्या है, आपका पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है. अब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स में पाई जाती है. नॉर्मल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिनकी इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है और इनकम घटने पे डिमांड घटती है, वो सारे नॉर्मल गुड्स होते हैं. अब नॉर्मल गुड्स की क्या है, तीन इलास्टिसिटीज होंगी. इनकम इलास्टिक क्या होता है, इनकम इलास्टिक मतलब होता है अगर if percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in income. मतलब अगर आपका डेल्टा डी मतलब चेंज इन डिमांड, मतलब चेंज इन डिमांड, अगर आपकी चेंज इन डिमांड ज्यादा है चेंज इन इनकम की मुकाबले, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इनकम इलास्टिक कहलाएगा. मतलब ये है कि आपकी इनकम तो बढ़ी थोड़ी सी, लेकिन उसके बदले क्या हो गई, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी. अगर एग्जांपल समझाऊं तो ये आपकी इनकम है और ये आपका डिमांड है. पहले आपका इनकम था 1000 रुपीज, तो आप 50 यूनिट्स गुड्स खरीद रहे थे. जब आपकी इनकम हो गई 1100 रुपीज, तो आपने क्या किया, 150 गुड्स यूनिट्स खरीदने शुरू कर दिए. मतलब इनकम में तो चेंज आया सिर्फ 100 का, ठीक है, लेकिन आपने यूनिट्स में क्या कर दिया, ज्यादा चेंज दिया. या इसको आप 200 भी कर सकते हैं, 200 कर दिया. लेकिन इसमें जो डिमांड है इसमें ज्यादा का चेंज आ गया, इसमें 100 का चेंज आ गया. तो इस केस में क्या है, आपका चेंज इन इनकम क्या है, चेंज इन इनकम तो क्या है, कम है, लेकिन चेंज इन डिमांड कितना है, ज्यादा है. तो जब चेंज इन इनकम कम होता है और चेंज इन डिमांड उसकी वजह से ज्यादा होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिक कहते हैं, राइट. नाउ इनकम इनलास्टिक क्या होता है, इनकम इलास्टिक इनलास्टिक जब इसका एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है. यहाँ पे आपका चेंज इन डिमांड कम होगा और चेंज इन इनकम ज्यादा होगा. मतलब आपकी इनकम तो बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन आपने डिमांड में ज्यादा चेंज लेके नहीं है. जैसे y है, ये d है. y स्टैंड्स फॉर इनकम, d स्टैंड्स फॉर डिमांड. आपकी इनकम थी पहले 1000, तो आप 50 यूनिट्स खरीदते थे किसी गुड के. आपकी इनकम हो गई 2000, तो आपने कितना खरीदा, सिर्फ 150 ही यूनिट्स खरीदे. यहाँ पे आपने क्या किया, आपके 1000 तो चेंज आया, मतलब जस्ट डबल हो गया. 100% आपकी इनकम बढ़ी है, पूरी डबल हो गया आपकी इनकम, लेकिन आपने क्या किया, अपनी डिमांड को ज़्यादा बढ़ाया नहीं. तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिमांड ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, ज़्यादा चेंज नहीं हुई, बल्कि चेंज इन इनकम ज़्यादा हुआ. तो इसको क्या कहते हैं, आपकी इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेल्टा, मतलब ये डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब चेंज इन डिमांड इज स्मॉलर देन चेंज इन इनकम. Now in this case this is unitary elastic. Unitary elastic में क्या होगा, जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतनी ही आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, या जितनी आपकी इनकम घटेगी उतनी आपकी डिमांड घट जाएगी. परसेंटेज वाइज हो सकता है, ठीक है. हियर डेल्टा डी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई. चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई. एग्जाम्पल, ये आपकी इनकम है, ये आपकी डिमांड है. आपकी इनकम पहले 1000 थी, तो आप 100 यूनिट्स खरीदते थे. आपकी इनकम अगर 2000 हो गई, डबल हो गई, तो आपने 200 यूनिट्स खरीदना शुरू कर दिया. तो ये भी डबल हो गया, तो ये भी डबल हो गया, राइट. सो ये क्या है, आपका यूनिटरी इलास्टिक इनकम है, यूनिटरी इलास्टिक चेंज इन इनकम है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव डन फर्स्ट टाइप. द फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला टाइप है पॉजिटिव इनकम इलास्टिक, जिसके इसके भी अंदर तीन तरह की इलास्टिसिटीज है. The next one is your negative income elasticity of demand.
हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इनकम। इसमें हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, राइट? इसमें हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। नाउ सेकेंड टाइप आपका है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले आपने पॉजिटिव पढ़ी थी, आपको नेगेटिव पढ़ रहे हैं। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है? ड्यू टू rise in income leads to fall in demand and vice versa। ना यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपकी डिमांड क्या हो रही है? घट रही है। ऐसा कभी होता नहीं है। आपकी इनकम बढ़ने पे आप हमेशा डिमांड बढ़ाते हो, लेकिन इस केस में नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में आपका क्या होगा? आपका उल्टा होगा। यहाँ पे आपकी इनकम जब बढ़ेगी तो आपकी डिमांड घट जाएगी। और ये किस केस में होता है? ये इंफीरियर गुड्स के केस में होता है। इट हैपेंस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत ही पुअर क्वालिटी के होते हैं एंड इनको ज्यादातर पुअर लोग कंज्यूम करते हैं। तो जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो पुअर क्वालिटी के गुड्स को क्या कर देते हैं? डिमांड कम कर देते हैं। क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप पुअर क्वालिटी के गुड्स नहीं खरीदोगे। आप क्या करोगे? आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप क्या करोगे? अच्छे गुड्स की तरफ शिफ्ट करोगे। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी पुअर होती है और यूजुअली पुअर लोग इसे कंज्यूम करते हैं। तो उनकी जब इनकम बढ़ती है तो वो इस तरह की गुड्स को, मतलब इंफीरियर गुड्स की डिमांड को घटा देते हैं। तो जब इनकम बढ़ने की वजह से, ठीक है, जब क्या हो रही है? इनकम बढ़ रही है, उसकी वजह से आपकी डिमांड घट रही है, इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। या इसका उल्टा समझ लीजिए, जब आपकी इनकम घट रही है तो आपने क्या किया? डिमांड बढ़ा दी। ये दोनों किस केस में हो रहे हैं? इंफीरियर गुड के केस में। लाइक एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका? ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है। ज्वार और बाजरा राजस्थान के लोग परचेस करते हैं, वो खरीदते हैं क्योंकि वहां पे गरीब लोग ज्वार और बाजरा ही खाते हैं और क्योंकि ज्वार और बाजरा सस्ता मिलता है और वो पुअर क्वालिटी का भी होता है तो पुअर लोग उसको कंज्यूम करते हैं। जब गरीब लोगों की सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो वो ज़्यादा ज्वार और बाजरा की डिमांड नहीं करते हैं, वो इनकम बढ़ने पे डिमांड घटा देते हैं। लेकिन अगर उनकी इनकम घटती है तो वो ज्वार और बाजरा की डिमांड को और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो इस तरह के केस को क्या बोलते हैं? इनकम नेगेटिव इलास्टिसिटी कहते हैं, राइट? नाउ दिस इज योर सेकंड केस, this we have done. Now the third is third elasticity, income elasticity of demand is zero income elasticity of demand. Now what will happen in this case? यहाँ पे आपकी इनकम बढ़े चाहे आपकी इनकम घटे, नो चेंज इन डिमांड। लाइक एग्जांपल ले लो, ये आपका इनकम है, ये आपकी डिमांड है। इनकम थी 1000 रुपए तो आप 50 यूनिट्स खरीदते थे। इनकम हो गई 2000 रुपए तो भी आप 50 यूनिट्स ही खरीद रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनकम बढ़ने का या इनकम घटने का कोई भी फर्क क्या है आपकी क्वांटिटी पे नहीं पड़ता है। Do you get that? ठीक है, तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड फॉर अ गुड implies a rise in income leaves quantity demanded unchanged. For instance, income elasticity of demand for salt cannot be changed. इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट। ये हम सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। सॉल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल। आपकी इनकम बढ़ी या घटी, अगर आपकी फैमिली वाले 2 पैकेट सॉल्ट के यूज करते हैं तो वो 2 पैक ही यूज करेंगे सॉल्ट के, राइट? क्योंकि सॉल्ट को आप उतना ही खा सकते हैं जितना आपको जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं खा सकते हो आप। तो या जब किसी केसेस में जब इनकम बढ़ने का कोई असर डिमांड पे नहीं पड़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जीरो इनकम इलास्टिसिटी। यू गेट दैट चिल्ड्रन? इसको हम क्या कहते हैं? जीरो इनकम इलास्टिसिटी।
So this is your income elasticity of demand, and I believe this is enough for you today, and you can do a bit more so that we can finish the chapter. Now we'll do cross elasticity of demand. This is the last topic. Cross elasticity of demand क्या कहती है? Elasticity of demand is defined as percentage change in quantity demand of commodity with respect to change in the price of the related commodity. Change in the quantity demanded due to change in the price of related गुड्स, राइट. तो क्रॉस इलास्टिसिटी आपका रिलेटेड गुड्स के बारे में बात करती है. रिलेटेड गुड्स जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रिलेटेड गुड्स आर योर सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आता है तो दिस इज नोन एज अ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है. इसके जो टाइप है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस elasticity of demand, right? इसमें टाइप्स है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इजी है. इसमें क्या होगा? इफ price of one commodity rises, say y एक कमोडिटी है, उसका प्राइस अगर राइज किया है, या y ना लेके हम यहाँ पे t ले लेते हैं, say t. अगर t का प्राइस बढ़ गया है then the demand for coffee rises. तो ये सब्स्टिट्यूट गुड है. यहाँ पे क्या होगा? एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है. ठीक है, ध्यान से दीजिए. इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी राइजेस, जैसे कि टी का प्राइस अगर राइज हो गया, देन द डिमांड फॉर कॉफी राइजेस. So this is the best example. ठीक है, ये बेस्ट किसके केस में होता है? It happens in the case of this things happens in the case of substitute goods. Substitute goods के केस में ये होता है. Second is your negative cross elasticity of demand. Negative cross elasticity. इस केस में क्या होगा? यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करेंगे, लाइक फॉर पेट्रोल एंड कार. यहाँ पे क्या होगा? अगर एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी की डिमांड घटती है. इन दिस केस rise in price of one commodity leads to fall in demand of other commodity. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक चीज के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरी चीज की डिमांड घटती है. एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल. अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है. क्योंकि अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम कार खरीदेंगे, और कार कम खरीदेंगे तो क्या हो जाएगी? पेट्रोल की जरूरत भी ज्यादा नहीं रहेगी. तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री केस में होता है. नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है, एंड पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड के केस में होता है. थर्ड एंड लास्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी.
केस में क्या होगा? इन दिस केस if two goods are not related to each other, say T, here we talk about unrelated goods, like T and TV. तो T और TV का रिलेशन ही नहीं है. If the price of T rises, if price of one good rises, it does not put any effect on TV's demand, right? तो जीरो इलास्टिक डिमांड क्या है? जीरो इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि एक चीज के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरी की डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो लेट्स आई ड्रॉ अ डायग्राम एंड वी जस्ट फिनिश दिस चैप्टर ऑफ. सो बेसिकली हमने अभी पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत आसान है. अगर हम टेबल ड्रॉ करें तो हम चीजों को समझ सकते हैं. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. राइट? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. इस केस में क्या होगा? वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो बेस है ये. टाइप कौन सा है? टाइप ऑफ गुड. सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में बात करते हैं. एग्जाम्पल, क्या है? टी एंड कॉफी. लॉजिक क्या है? प्राइस ऑफ tea rises, which leads to demand of coffee. तो इस केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट कॉलम को पढ़े तो फर्स्ट कॉलम हमारा एक्सप्लेन कर रहा है पॉजिटिव इलास्टिक डिमांड के बारे में. यहाँ पे टाइप ऑफ गुड क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में बात होती है. एग्जाम्पल हम टी और कॉफी का ले सकते हैं. तो प्राइस ऑफ टी अगर राइज करता है तो डिमांड किसी की बजाय कम हो जाएगी. डिमांड फॉर कॉफी रिड्यूसेस. इस केस में हम किसकी बात करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइस ऑफ कार rises, डिमांड फॉर पेट्रोल फॉल्स. एक का प्राइस राइज होने पे दूसरी की डिमांड गिरेगी. यहाँ पे एक का प्राइस राइज होने पे दूसरी की डिमांड बढ़ेगी. ठीक है? यहाँ पे अनरिलेटेड गुड्स. ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टी एंड कॉफी. इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस, प्राइस ऑफ टी राइजेस, there will be no effect on demand for TV. Very simple, right? So cross elastic डिमांड में एक्सप्लेन करने का तरीका है. या टाइप ऑफ गुड हम क्रॉस इलास्टिक अगर पॉजिटिव पढ़ रहे हैं तो वहाँ सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में बात होती है. अगर नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में बात होती है. और अगर जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे
अनरिलेटेड गुड के बारे में बात होती है। एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, टी का प्राइस बढ़ने पे कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, कार का प्राइस बढ़ने पे पेट्रोल की डिमांड घटेगी। एंड अनरिलेटेड गुड्स में टी एंड टीवी, टी एंड टीवी का एग्जाम्पल ले लीजिए। टी का प्राइस बढ़ने पे टीवी की डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो चिल्ड्रन, we have here finished lesson number 4, that is elasticity of demand, and Monday onwards we'll be starting with the new chapter, lesson number 5. So I hope you have understood the chapter and the notes are already done. So children, you can just go through the video and stay at home and stay healthy. Take care of yourself.